So today class is regarding the ketosis. You know, the ketosis is can say the condition in which the ketone bodies is increasing in the body fluid, that is mainly in the blood. The level of ketone bodies increases in blood, and these ketone bodies are called, they are acetoacetic acids, beta deoxybutyric, and acetone. Okay, and they are synthesized in liver. Mainly, they are synthesized in liver, and acetyl coenzyme is a precursor for these ketone bodies. Due to this acidic nature of these ketone bodies, they excessive accumulation of this ketone body lead to ketoacidosis. They are called ketoacidosis. Acidosis is due to ketone bodies, so they are called ketoacidosis. Okay. So ketosis is that simply increase in the concentration of the ketone body in blood, and ketone bodies are acetoacetic acid, beta deoxybutyric, and acetones, and they are synthesized in liver, and precursor is acetyl coenzyme A, and due to acidic nature, they causes ketoacidosis. If excessive of ketone bodies accumulated in the blood. Okay. And actually ketogenesis means the synthesis of ketone bodies mainly responding to low blood glucose level. If blood glucose level is low, then this ketoacidosis, ketogenesis is there, and then that lead to ketosis. Okay. So why this happens in the animals? You can see. I already said that this the ketogenesis is due to deficiency of, or you can say that the less glucose ability to the cell actually. Okay. So it maybe happens when during fasting. If you are fasting, anyone in the fasting condition, then there is a low ability of glucose, starvation is there, unavailability of food, any kind of thing. You're not given the food to animal, in that case also. Okay, some restriction in the carbohydrate diet, maybe even given some other diet, no carbohydrate is there. Whatever given to animal, in that presence of carbohydrate is very less. So in that case also, it occurs prolonged exercise. If you are the animal is using lots of exercise, or you also can doing lots of exercise, but for that purpose require energy, and that energy comes from glucose. So that all glucose will be depleted, so that lead to ketosis. Okay. The trace level of ketone body is always present in the body. Okay. And the increased level of ketone body is to respond to low level of blood glucose. Why? Because if you are any kind of fasting, starvation is there, then the blood glucose level, whatever the reserve glucose is in our body, that will be depleted out, and then liver shift the metabolism towards the fat instead of carbohydrate, because carbohydrate is not available. So due to absence of carbohydrate, liver shift the metabolism towards fatty acids. Okay, so fatty acids से एनर्जी ज्यादा मिलने लगती है, कार्बोहाइड्रेट से कम लगती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बॉडी में नहीं रहता, बॉडी को एनर्जी एनीहाउ चाहिए. Okay. So when liver is rapidly metabolizing these fatty acids, they convert into acetyl coenzyme, and this excessive of acetyl coenzyme, you know the fate of acetyl coenzyme. Acetyl coenzyme enter into the TCA cycle to give the energy. Okay. But the component of TCA cycle, whatever the enzymes of TCA cycle, they are limited. Okay. The components are limited. So excessive of this acetyl coenzyme molecule will be present there, and this excessive of acetyl coenzyme molecule converted into ketone bodies. बहुत ज्यादा acetyl coenzyme में बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड से बन जाता है, तो सारे के सारे TCA साइकिल में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि TCA साइकिल की एक लिमिट हो जाती है. ओके. सो वो कन्वर्ट हो जाता है कीटोन बॉडी में, और कीटोन बॉडी जो की है सोर्स ऑफ एनर्जी होती है. दे आर एक्चुअली सोर्स ऑफ एनर्जी. नॉर्मली इज गुड, बट एक सर्टेन कंडीशन के तरफ में कुछ लेवल तक ये ठीक है. तो क्या हुआ, किससे क्या होता है कि अब फर्दर some this liver itself cannot utilize this ketone body, but ketone body are mainly utilized by brain, पेरिफेरल टिश्यू एंड ब्रेन. ब्रेन जो है कि ग्लूकोज और कीटोन बॉडी दो ही चीज को यूटिलाइज कर सकता है, फैट को यूटिलाइज नहीं कर सकता. ओके, डायरेक्टली फैट को नहीं यूटिलाइज करता. जो भी लिपिड का मेटाबोलाइजेशन करने का काम होता है वो लीवर में ही करता है. वहां से कीटोन बॉडी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और वहां पे फिर दिस आपको या ब्रेन और अदर पेरिफेरल टिश्यू मेटाबोलाइज करते हैं दिस कीटोन बॉडीज को. ओके.
एस्टाइल कोएंजाइम जो मैंने ऑलरेडी बताया कि टी साइकिल के थ्रू सारे नहीं हो सकते किसी सेल में, मतलब सारे सेल में एस्टाइल कोएंजाइम में। हाँ, बॉडीज ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है क्या? कौन? कीटोन बॉडी, यस, कैन क्रॉस, कीटोन बॉडी क्रॉस कर सकता है। ओके, तो टीसी साइकिल के थ्रू मेटाबोलाइज होकर के आप एनर्जी देगा डिफरेंट बॉडी को। देखिए लीवर में क्या हुआ कि एक्सेसिव है तो वहां पे तो लिमिटेड होगा, लेकिन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में क्या होगा कि फिर जाने के बाद ये जो कीटोन बॉडी है दैट विल कन्वर्ट इनटू अगेन एस्टाइल कोएंजाइम एंड देन यूटिलाइज बाय दैट टिश्यू। ओके, मिली ब्रेन, अगर वहां पे फिर से गया तो ब्रेन में फिर एस्टाइल कोएंजाइम और टीसी साइकिल में जाकर वहां पे यूटिलाइज हो जाएगा। तो क्या हो रहा है कि लीवर के अंदर वो टीसी साइकिल में नहीं जा रहा है, लेकिन दूसरे बॉडी डिफरेंट पार्ट में जा रहा है, क्योंकि लीवर में एक लिमिट आ गई, एक्सेसिव एस्टाइल कोएंजाइम में आ रहा है लीवर के अंदर, दूसरी जगह पे ऐसा नहीं है। तो कीटोन बॉडी वो कन्वर्ट होके दूसरी जगह पे वो जाके मेटाबोलाइज होगा। ये नॉर्मल प्रोसेस होती है। ओके सर थर्ड पॉइंट जो था, लीवर इटसेल्फ कांट यूटिलाइज दिस मॉलिक्यूल फॉर एनर्जी, हाँ वो ये वाला सर लाइन जस्ट मेक इट क्लियर। एक्चुअली क्लियर, क्योंकि बिकॉज ग्लूकोज the liver is a reserve for glucose everything, so most availability of glucose is for liver. Okay, so वो जो है कि उसको यूटिलाइज नहीं करता है मिली, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, उसके पास खुद का ग्लूकोज है तो फिर वो क्यों यूटिलाइज करेगा इसको? ठीक है, क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस सारे प्रोसेस ग्लूकोज से रिलेटेड होते हैं, लीवर के पास ग्लूकोज की कभी कमी नहीं होती है। ओके, इसलिए यूटिलाइज नहीं करते हैं, वो दूसरे बॉडी पार्ट जहाँ पे ग्लूकोज की कमी है वो यूटिलाइज करते हैं। Okay, mainly brain and peripheral tissues, they are utilizing this ketone bodies. Clear? Okay. Okay. अब क्या कि कीटोजेनेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में लीवर सेल्स में मेनली होती है। ओके, एंड अगर आपको होता क्या है, देखिए दो चीजें, लीवर में कीटोजेनेसिस हो रहा है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स भी हो रहा है वहीं पे, ठीक है, वहां से फिर कीटोजेनेसिस हो रहा है। एंड देन क्योंकि ग्लूकोज की कमी है, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ग्लूकोज देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस, that is gluconeogenesis, that also takes place in liver. So gluconeogenesis takes place in liver, due to that the one component of TCA cycle that is called oxaloacetic acid, whatever मैंने अगर क्लास में बताया होगा आपको याद हो कि जितने भी इंटरमीडिएट है, ऑल इंटरमीडिएट ऑफ TCA साइकिल डाइवर्टेड, तो क्या होता है कि वो डाइवर्ट होते हैं ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से, और यहाँ से फिर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सैलोएसिटेट कन्वर्टेड टू फॉस्फोनाइल पारुवेट एंड देन पारुवेट। ओके, तो पारुवेट एसिड से back जाकर backward of glycolysis, then synthesis of glucose is there. Okay, so most of the component of TCA cycle is towards gluconeogenesis, जो बॉडी को ग्लूकोज चाहिए। ओके, क्योंकि ऑक्सैलोएसिटेट की कमी हो गई, सो ऑक्सैलोएसिटेट की कमी होने के कारण TCA साइकिल अगेन हैम्पर्ड, और ज्यादा एस्टाइल कोएंजाइम में TCA साइकिल में नहीं जा सकता, और वो कीटोन बॉडी की ज्यादा सिंथेसिस होने लगी। जितना ग्लूकोज जितना देरी तक रहेगा कमी, उतना ज्यादा कीटोन बॉडी बनता चला जाएगा, एक्सेसिव बनता चला जाएगा कीटोन बॉडीज, जो कि बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाता है सारे कीटोन बॉडीज को। ओके, तो एक्सेस एस्टाइल कोएंजाइम सिंथेसिस के एक्सेस कीटोन बॉडीज को और अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज कॉल्ड लीड्स टू कीटोसिस, दैट इंक्रीज लेवल ऑफ द कीटोन बॉडीज इन द ब्लड फ्लूइड। सो हियर द mechanism you can see. Okay, their action under influence of some hormone also. आप जानते हैं कि हार्मोन के इन्फ्लुएंस में काम करता है ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म मेनली। ओके, तो आप देखिए कि इधर फैट से जो है कि आपको एस्टाइल कोएंजाइम से कैसे ये बन रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो एस्टाइल कोएंजाइम है, जो अब लीवर के अंदर एस्टाइल कोएंजाइम कन्वर्ट इनटू डिफरेंट ये दैट इज बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारेट इज वन ऑफ द कीटोन बॉडीज। ओके, तो लीवर में कीटोन बॉडीज में बना कन्वर्ट हुआ, एंड देन फ्रॉम हियर इट इज गोज टू अदर ऑर्गन मतलब अदर ऑर्गन ऑफ द एक्सेप्ट लीवर, अदर माइटोकॉन्ड्रिया, उसका माइटोकॉन्ड्रिया जाने के बाद अगेन कन्वर्टेड टू एस्टाइल कोएंजाइम में, एंड अगेन इट विल गिव द एनर्जी। ओके, again then it is getting converted into acetyl coenzyme। हाँ, अगेन फिर से एस्टाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा। हाँ, अगेन फिर से कन्वर्ट होगा। सिर्फ ये क्या हो रहा है कि इसका सिग्निफिकेंस ये हुआ कि एक्सेसिव जो एस्टाइल कोएंजाइम में है, that will inhibit the glycolysis also. If the excess of estyl coenzyme is accumulated anywhere, any cells, so liver के सेल में ज्यादा estyl coenzyme accumulate हो गया तो उसको क्या पास ऑन कहीं बाहर भेजना होगा,
ओके, अगर आपके घर में बहुत सारा वो एक्सेसिव आ गया, प्रोडक्शन हो गया, तब क्या कीजिएगा? किसी और को दीजिएगा कि दैट दे कैन यूटिलाइज। ओके, तो ऐसा ही हो रहा है। उसको क्या किया गया कि बहुत सारी एक साथ पैकिंग कर देंगे। पैकिंग का मतलब ये क्या हुआ, 2 स्टाइल एंजाइम को एक साथ मिला के 3 स्टाइल एंजाइम मिला करके एक बीटा हाइड्रोक्सीब्यूट्रेट बन गया और इसको भेज दिया गया। ओके, तो पैकिंग करके भेजा गया। सो इस पे दूसरे बॉडी पार्ट्स यूटिलाइज किए। So whatever the biochemical alteration are there, biochemical alterations में क्या होती है? कीटोनेमिया। कीटोनेमिया means increase in anemia can say presence or absence वाली होता है। Okay, so presence of this high concentrated ketone body in blood is called ketonemia. Okay, ketonuria is there, presence of ketone body in urine, and hypoglycemia, ग्लूकोज की कमी होती है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कीटोनेरिया, कीटोनेमिया and hypoglycemia, ग्लूकोज की कमी होती है। They are the biochemical alteration in ketosis, and the Rothrard test is used for detection of ketone bodies in urine. आप लोगों ने शायद किया होगा रोथराज, हमने कराया है। ओके, शायद। ओके, सो रोथराज टेस्ट इज नहीं किया सर, नहीं किया सर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आए तो प्रैक्टिकल हम लोग कर लेंगे। सो दिस रोथराज टेस्ट इज यूज्ड फॉर प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन। ओके, रोथराज एक पाउडर होती है, सिंपली पाउडर, ड्यू टू एक्चुअली यूरिन की एक डेंसिटी होती है। ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। सो जैसे ही अगर वो डिप कर गया, सो मोर कीटोन बॉडी, जैसे ही कीटोन बॉडी ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो वो क्या होगा, रोथराज जो पाउडर होता है वो डिप नहीं करेगा। अगर डिप कर गया तो ठीक है, ओके, डिप नहीं किया दैट इज उसकी डेंसिटी बढ़ गई है, सो वो आपका पॉजिटिव हो गया। ओके, so types of ketosis are there: elementary ketosis, fasting ketosis, diabetic ketosis, and ketosis associated with pregnancy and lactation, and post exercise ketosis. So elementary ketosis is there, that mainly in defective alimentary canals. Okay, so elementary ketosis mainly क्या होता है कि faulty silage, जो है ना spoiled silage होते हैं, they contain very high amount of volatile fatty acids. Volatile fatty acids क्या है, itself they are ketone bodies, they convert into ketone bodies. The volatile fatty acid ketone body में आराम से convert हो जाते हैं। Okay, तो ज्यादा faulty silage खाने से क्या होगा, उसमें बहुत सारे volatile fatty acids हैं, and that will convert into ketone body, so that lead to the ketosis. So elementary ketosis are there. Okay, और मेनली जो है ना क्या होता है, जैसे वो बीटा डॉक्सीब्यूट्रेट एक्चुअली कैसे बीटा डॉक्सीब्यूट्रेट जो कि रूमेन एपिथेलियम में सिंथेसिस होती है, बिकॉज़ रूमेन एपिथेलियम हैविंग हाई एक्टिविटी ऑफ दिस एंजाइम दैट कन्वर्ट द ब्यूट्रेट टू बीटा डॉक्सीब्यूट्रेट। ओके, देन फास्टिंग ketosis, फास्टिंग मेनली ड्यू टू द that deficiency of the glucose. Elementary ketosis में क्या हो रहा था, ग्लूकोज की कमी की कोई बात नहीं थी। वहां पे क्या हो रहा है कि फीड में ही वो अकेला है कीटोसिस, जिसमें ग्लूकोज से लेना देना नहीं है, एलिमेंट्री कीटोसिस। ओके, एक और एलिमेंट्री कीटोसिस का एक और पार्ट होता है, ये जो मेनली ह्यूमन बींग्स या नॉन रूमिनेंट्स में कह सकते हैं, रूमिनेंट्स में नहीं, नॉन रूमिनेंट्स में कहेंगे। एलिमेंट्री कीटोसिस अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, absorption of carbohydrate का absorption ही properly नहीं हो पाया, तो that case also that lead to ketosis, so that link to glucose. लेकिन mainly जो elementary ketosis जो ruminants में होते हैं, due to eating of faulty silage, that not related to glucose. glucose के लिए से उसका कोई मतलब नहीं होता glucose के लिए। other kind of ketosis they are always related to glucose ability. Okay, so fasting ketosis, if you are fasting there, then what happens that the glucose level will be low, and then your body shifted towards the lipolysis. More lipid will be utilized, and then this plasma glucose concentration will decreases, hypoglycemia is there, and then what happens that the due to low glucose level, insulin concentration will be high. होगा ना, हाई ग्लूकोज कंसेंट्रेशन होगा, ठीक है, सॉरी लो ग्लूकोज कंसेंट्रेशन पर इंसुलिन का सिक्रेशन शुरू हो जाएगा। ओके, so concentration is high. Okay, and this hormonal changes के कारण क्या होता है कि adipose tissue से फैट रिलीज होता है और फिर फैट का मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाता है। लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स है कि वो रिलीज होते हैं फ्रॉम adipose tissue and they utilize for energy, and then development of ketosis takes place. मैकेनिज्म ऑलरेडी हम लोग देख चुके कैसे होगा। ओके, आगे का प्रोसेस सेम होता है। कारण यहाँ पे क्या है, सिंपली फास्टिंग के कारण ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा है, इसके ग्लूकोज क्यों नहीं मिल पा रहा है, इस कारण से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीटोसिस हैं। ओके, तो एक फास्टिंग के कारण हो गया डायबिटिक कीटोसिस।
डायबिटिक कीटोसिस यहाँ पे ग्लूकोज अवेलेबल है ब्लड में, लेकिन सेल्स के पास नहीं है, बिकॉज इन डायबिटीज ग्लूकोज इज अनएबल टू एंटर इनटू द सेल्स, सेल के अंदर नहीं आ जा रहे हैं। ओके, हाइपरग्लाइसेमिया होती है, एक सिंगल के मतलब कीटोसिस है जिसमें हाइपरग्लाइसेमिया, बाकी केसेस में क्या हो रहा है हाइपोग्लाइसेमिया, से ग्लूकोज की कमी है बट कीटोसिस डेवलप हो रहा है। यहाँ पे ग्लूकोज ज्यादा है तो भी कीटोसिस डेवलप हो रहा है, बिकॉज क्योंकि सेल के अंदर जो है कि ग्लूकोज नहीं जा रहा, सेल के अंदर नहीं जा रहा तो दे कैन यूटिलाइज द ग्लूकोज, सो इट्स फॉर सेल इट इज एक्चुअली कैन से द सेल ग्लूकोज लेवल कम है, ब्लड के लिए ग्लूकोज लेवल हाई है बट सेल के लिए ग्लूकोज लेवल कम है। इस कारण से क्या होता है कि ग्लूकोज की एबिलिटी लो हो गई, और लो होने के बाद देन बॉडी शिफ्टेड टुवर्ड्स द फैट एंड देन अगेन more production of stealth coenzyme is there and then excessive production of ketone body is there. Okay, and it is mainly takes place in dog and cat. Animal में dog and cat में, तो human में तो most common है diabetes. So diabetic ketosis, diabetes के केस में जो ketosis develop in diabetes is called diabetic ketosis, mainly occurs in dog and cats. Other domestic animal में rarely मनुष्य की नहीं होता है, लेकिन rarely कहते हैं कि मिलता है. Okay, some cases are there. Okay. तो कीटोनेमिया लास्टली क्या होगा, कीटोनेमिया डेवलप हो जाएगा। कीटोनेमिया इज दैट इज द इंक्रीज इन लेवल ऑफ द कीटोन बॉडीज इन द ब्लड, दैट इज कीटोनेमिया. इट इज ड्यू टू lipolysis of the this lipid from adipose tissue and the more gluconeogenesis in the liver. Okay, so this is diabetic ketosis. Post exercise ketosis, if you go for that the excessive ketone कैसे exercise, तो ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा, that utilize the more during exercise more fat will utilize. Okay, because there is a मतलब तुरंत आपको एनर्जी चाहिए, तो क्या होगा कार्बोहाइड्रेट उतना मिल नहीं पाएगा, तो ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं. ओके, तो क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द जो होते हैं मसल्स का ये यूटिलाइज हो गया ग्लूकोज, तो क्या हुआ उसके बाद लॉन्ग चेन फैटी एसिड यूटिलाइज होंगे बाय मसल्स, क्योंकि एक बैग क्या हुआ आपने एक्सरसाइज किया तो ग्लूकोज सारे यूटिलाइज हो गए. लो लेवल ऑफ ग्लूकोज इज देयर, सो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स यूटिलाइज बाय मसल्स एंड देन कीटोन बॉडी इज प्रोड्यूस्ड एंड यूटिलाइज बाय मसल्स. ओके, होता क्या, और इसके बाद क्या है कि अगर ट्रेंड कोई है एथलीट्स तो ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें डिले होता है कीटोसिस डेवलपमेंट, फास्ट उतना नहीं होता, डिले होता है, क्योंकि ट्रेनिंग अगर ट्रेंड किए हुए हैं तो देयर एक्टिविटी विल बी हाई. एक्चुअली क्या होता है, जो एंजाइम्स होते हैं रिलेटेड टू दिस फैटी एसिड एंड कीटोन बॉडी यूटिलाइजेशन वो ज्यादा होता है, तो क्या हुआ ज्यादा कीटोन बॉडी को यूटिलाइज कर लेगा मसल्स, तो कीटोन बॉडी ब्लड में नहीं जाएगा. अगर नहीं करते हैं, अगर ऐसा नहीं है, अगर आप ये कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज एक बैग करने लगे तो क्या होगा कीटोसिस डेवलप हो जाएगा. जो कोई एक्सरसाइज डेली नहीं करता है और एक बैग एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कर लिया तो कीटोसिस डेवलप होने के पूरे चांसेस होते हैं. ओके, अब क्या है कि देखिए जब एक्सरसाइज आप करें उस समय तो ग्लूकोज की कमी हुई तो फिर बॉडी शिफ्ट करेगा लिपिड की तरफ, लिपिड शिफ्ट करेगा तो कीटोन बॉडी फॉर्मेशन होगा, उनको यूटिलाइज करें आप, ठीक है, उसको है कि मसल्स यूटिलाइज कर रहा है कंटिन्यू. और ये प्रोसेस अगर आप कंटिन्यू रहता है, जब आप एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं तो भी ये कीटोन बॉडी का प्रोडक्शन होता रहता है, क्योंकि बॉडी को ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज तो मिला नहीं, कुछ खाइएगा उसके बाद तो ग्लूकोज मिलेगा, तब तो ये खत्म होगा, नहीं तो कीटोसिस कंटिन्यू रहेगा. तो उसके बाद क्या कुछ आपको उस तरह की थेरेपी लीजिएगा तो फिर ये आप कुछ खाइएगा तो धीरे धीरे सबसाइड होगी. ओके, सो दीज आर द रिलेटेड टू कीटोसिस. कुछ समय और है, कुछ सवाल पूछे तो पूछिए, नहीं तो अगली क्लास में बताएंगे वो वन कीटोसिस दूसरी. एनी क्वेश्चंस? सर कीटोनेमिया. कीटोनेमिया इज दैट द नेमिया हमेशा जो याद रखिएगा, यूरिया नेमिया. Anemia means that increased level of something. So ketonemia is increased level of ketone body. Okay, ketonuria means increased level of in urine. कुछ भी हो सकता है ketone bodies का in urine. So anemia and urea ये दो वर्ड याद रखिएगा. Okay, clear? Ketosis is a condition. Ketosis एक बीमारी है, कीटोनेमिया एक आप कह सकते हैं सिम्टम हो गया. कीटोनेमिया जैसे हाइपरग्लाइसेमिया हाइपोग्लाइसेमिया का, तो उसी तरह से कीटोनेमिया इज देयर. ओके, क्लियर? कीटोसिस एक कंडीशन को कहेंगे जिसमें कीटोनेमिया होता है. एनी अदर क्वेश्चन? नो? ओके देन